Okay, so let's start our today's class. Today we are going to start with our new chapter, which is biodiversity. Okay, now can you guys tell me what do you understand by biodiversity? Yes, living world में जो so basically the different basic last class भी हम लोग ने ये बायोडाइवर्सिटी के बारे में सिंपल वर्ड्स में देखा था कि bio is life and diversity is variation. So all the different varieties of things that we found in the nature that we are going to discuss here. Along with that, we are going to also discuss on an important topic, which is and is not the important. Conservation. Basically, what do you guys think? Is there a need to conserve biodiversity? Why? Yes. Why do you think there is a need to conserve them? Because there are a lot of species that are getting extinct, and in order to retain them, we need to conserve them. So when we talk about conservation, we are going to discuss here ki what are the different techniques or methods through which we are going to conserve. So this chapter is basically divided into two parts. First, we are going to understand about diversity कितना है, कौन से एरिया में कितना diversity है, क्या है and all that. And the second part is about the conservation, how we are going to conserve. So conservation के topic में many things we are going to look for that we have did in our 11th स्टैंडर्ड का फर्स्ट चैप्टर का एंड पार्ट में, जो टैक्सोनॉमिकल एड्स में हमने पढ़ा था. Yes, so we have to understand the names and remember the names. Let's continue with our chapter, which is biodiversity. So yeah, biodiversity का simple meaning क्या है? It's life forms का variation. Yes. Now, can you tell me who was the person who coined the term biodiversity? Who is that? Anton G. In which year? 1985. Okay. Fine. Term was coined by this person. But there is a catch here. फेमस बायोडाइवर्सिटी वर्ड उसकी वजह से नहीं हुआ, उसने सिर्फ ये वर्ड ढूंढा. लेकिन फेमस, या हम लोग ने ये बायोडाइवर्सिटी वर्ड यूज करना कब से शुरू किया? जब किसी एक XYZ साइंटिस्ट ने अपने को फेमस कराया होगा. सो हु इज दैट साइंटिस्ट हु पॉपुलराइज्ड इट? Who was it? Edward Wilson. Edward Wilson. In which year? 1992. Okay? Simple? Okay? So, अब एडवर्ड विल्सन ने जब बायोडाइवर्सिटी को अंडरस्टैंड किया, पॉपुलराइज किया, सो ही कम अप विद द लेवल्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी. क्या निकाला इसने? तो इसकी लेवल्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी आर डिवाइडेड इनटू 3 levels. The levels of diversity are divided into how many levels? What are those 3 levels? Genetics. So basically it's genetic diversity, species diversity, and ecological diversity. Now when I am saying it as genetic diversity, तो उसमें क्या होगा? Variation with respect to genes. Genus यहाँ पे
देन व्हाट अबाउट इकोलॉजिकल? चलो जेनेटिक और स्पीशीज का तो तुमने बता दिया. सिस्टम में वेरिएशन Okay. Variation of genus the species. Then how we will define? Okay, ecological का बताओ. Yes. Can we say it is a variation in biological communities? Biological communities मतलब क्या? Yes, where we discuss about, जैसे कि हम लोग ने इकोसिस्टम वाले चैप्टर में पढ़ा है, बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट्स का इंटरेक्शन, then different types of ecosystem we have. So all those things are included in ecological diversity. Now I want you guys to tell me example of each. Genetic diversity का कोई example दे सकते हो? इंडस्ट्रियल मैकेनिज्म वाला वो इधर क्यों आएगा? सिंपल एग्जाम्पल, हम लोग ने बायोटेक में राइस की बहुत सारी स्पीशीज होती है पढ़ी है. कितनी थी? या फिर मैंगो के डिफरेंट टाइप्स जो है. तो जेनेटिक में क्या आएगा अगर तू उसको स्पीशीज में डालेगा तो? हम लोग सबका स्पीशीज में मोर ओवर वे लुक फॉर कि वो एक पर्टिकुलर एरिया में वो स्पीशीज का कितना ज़्यादा है. जैसे कि अगर वेस्टर्न घाट्स मैंने कंसिडर किया तो वेस्टर्न घाट्स में कौन सी स्पीशीज की रिचनेस ज़्यादा होगी? वेस्टर्न घाट्स मतलब कौन सा साइड? कोकण, महाबलेश्वर, कोकण. तो वो साइड पे कौन से स्पीशीज की रिचनेस ज़्यादा होगी? हाँ, और एम्फीबियंस भी होंगे एम्फीबियंस होंगे ना कि नहीं होंगे? बिल्कुल भी नहीं होंगे. तो वेस्टर्न घाट्स में सिर्फ क्या? एक मिनट, एम्फीबियन में मिनी अटैक आ गया थोड़ा सा मेरे को. वो भी किडनी में आ गया मेरे को. किडनी में अटैक आ जाएगा. यस, ऑल मेनी वाइल्ड एनिमल्स की स्पीशीज मिलेगी वेस्टर्न घाट्स में. यस. सो स्पीशीज रिचनेस के बारे में जब मैं बात कर रही हूँ तब मैं एरिया वाइज देखूंगी. एंड जब नॉर्मली हम लोग डिफरेंट चीज़ें मिलती है जो हम लोग को स्पीशीज में, जैसे मैंगो इज माई जीनस, लेट्स से मैंजीफेरा, बट उसमें वी आर गोइंग टू हैव अ लॉट ऑफ, जैसे मैंगो के अपने पास बहुत सारी स्पीशीज है. राइस के टोटल 50,000 स्पीशीज है, बस 50,000. और मैंगो के ऑलमोस्ट 1,000 स्पीशीज है.
तो ये किसके अंदर आएगा एग्जाम्पल? जेनेटिक डाइवर्सिटी के अंदर. इज इट क्लियर? नाउ स्पीशीज में तुमको समझा, हम लोग एग्जाम्पल किसका ले सकते हैं? वेस्टर्न घाट्स का, जहाँ पे स्पीशीज रिचनेस बहुत ज्यादा है. कमिंग टू इकोलॉजिकल, कैन यू गिव मी एन एग्जाम्पल? हाँ, बेसिकली इकोलॉजिकल प्रोसेसेस वगैरह का जो हम लोग डिस्कशन करते हैं वैसा. लेकिन अब यहाँ पे इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी में ना हम लोग ने डिवीजन किया है इनटू 3 टाइप्स. अल्फा, बीटा एंड गामा में. कितने टाइप में डिवाइड किया इनको हमने? 3 टाइप में, अल्फा, बीटा एंड गामा. So, can you see in a particular region there is, here I have written alpha 1, alpha 2, alpha 3 है, ये बीटा है, and बाहर की location is given as gamma. So when you look for alpha diversity में क्या है? Habitat पे dependent है, species richness है, evenness है. ठीक है. बीटा में क्या है? It is a biodiversity between communities due to the replacement of species with change in habitat, niche and different environmental condition. Different, basically imagine करो हम लोग जैसे मुंबई है, मुंबई में because of the availability of the jobs different state के लोग आके रह रहे हैं. So we will become beta community, and जो already मुंबई में थे scattered, they will be my alpha community. ठीक है. देन गामा कम्युनिटी में क्या आएगा? इट इज अ डाइवर्सिटी प्रेजेंटिंग इन रेंज ऑफ कम्युनिटी रिप्रेजेंटेड बाय डाइवर्सिटी ऑफ हैबिटेट्स, इकोसिस्टम और दी टोटल लैंडस्केप और ज्योग्राफिकल एरिया. जब मैं पूरा एरिया कंसिडर कर लूंगी, जो स्कैटर्ड मुंबईकर्स है और एक पॉइंट पे जब डिफरेंट स्टेट के लोग भी मिल रहे हैं, वो उस पूरी लोकेलिटी को जब मैं एक साथ कंसिडर कर रही हूँ, जैसे कि लेट्स से महाराष्ट्र, सो दैट महाराष्ट्र विल बी माय गामा रीजन. समझा? पक्का? श्योर? ये पार्ट क्लियर है. लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट पार्ट विच इज बायोजियोग्राफिकल जोन. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय दैट? बायोजियोग्राफिकल जोन, इसका मतलब क्या है? अपने इंडिया में बहुत सारी डिफरेंट जोन्स है, ये हमने पढ़ा है. इंडिया के जोन्स नहीं पढ़े हमने, इन जनरल जोन्स पढ़े हैं, राइट? अब इंडिया में वी आर हैविंग डिफरेंट वैरायटीज. हर एक जगह पे डिपेंडिंग अपॉन द टेम्परेचर वी आर हैविंग डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीशीज. ठीक है. अब उनका जब हम लोग अंडरस्टैंडिंग करते हैं तब हमको पता चलता है कि कहाँ पे कितना है. एंड इंडिया इज वन ऑफ द 17th मेगा डाइवर्सिटी रीजन ऑफ द वर्ल्ड. हम लोग 17th नंबर पे हैं, जहाँ पे बहुत ही ज्यादा वैरायटी ऑफ क्या मिलता है? डाइवर्सिटी मिलता है. और अपने पास कितने नेशनल पार्क्स है, किसी को पता है? एनी गेसेस हाउ मेनी नेशनल पार्क्स वी आर हैविंग? वी आर हैविंग 106 नेशनल पार्क्स. कितने हैं नेशनल पार्क्स अपने पास? 106. एंड हाउ मेनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज? बस 22 ही है. वापस सोच लो. 567 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है. बहुत ही हम लोग कम गैस कर रहे थे. अपने पास बहुत सारी चीजें, हम लोग को आधी सेंचुरीज के तो नाम भी नहीं पता है. हमको सिर्फ सिलेक्टेड 3-4 जो फेमस सेंचुरीज है और नेशनल पार्क है उनका ही नाम पता है. मुंबई के नेशनल पार्क का नाम होपफुली तुमको पता है. रानी बाग इज नॉट द नेशनल पार्क, जू है वो. संजय गांधी नाम ही बदल दिया हमने, इतना हमको ही है. अच्छा, हाउ मेनी बायोस्फीयर रिजर्व्स वी आर हैविंग?
Do you know what is biosphere reserve? Biosphere मतलब क्या? सारे कंपोनेंट्स को मिक्स करके, ठीक है। तो ऐसी प्लेसेस जहाँ पे हम लोग सबको एक साथ रिजर्व करके रख रहे हैं बेसिकली, ऐसी कितनी प्लेसेस है अपने पास? होंगी क्या? 200 यहाँ पे ये कम होता है क्योंकि ये एक साथ आ जाती है ना बहुत सारी चीजें। वही नाम है इनका। Then we have tiger reserves and wetlands. What are wetlands? टाइगर रिजर्व्स तो समझ गया होगा तुमको, जहाँ पे हम लोग टाइगर्स को कंजर्व करने वाले हैं। हाँ। देन वेटलैंड्स का क्या? वेटलैंड्स, व्हाट आर वेटलैंड्स? मार्शी एरियाज, तो उनको भी तो अपने को देखना है। तो ऐसे कितने हैं? 175 वेटलैंड्स तो बहुत सारे, तो इनको हम लोग ने इतना ये नहीं किया हुआ है। बट टाइगर रिजर्व्स कितने हैं बताओ? कितना? यस, 50, आई थिंक सबसे क्लोज साईश्री का था, बिकॉज इट इज 54. Yeah. Cool. So, can you see the diagram that I have attached here? Okay. So, ये है डायग्राम हमारे इंडिया का है, मैप है, राइट? सो इसमें वी हैव जस्ट शेडेड द एरिया ताकि अपने को समझ आए कि कहाँ पे कितना है. सो इफ यू विल ऑब्जर्व वेस्टर्न घाट्स एंड डेक्कन पेनिनसुला, ये दो एरिया जहाँ पे हमको बहुत ही ज्यादा बायोडाइवर्सिटी मिलती है, इसीलिए वेस्टर्न घाट्स आर कंसिडर्ड एज मोस्ट रिच रीजन फॉर द डाइवर्सिटी एंड लार्जेस्ट बायोजियोग्राफिकल रीजन कहाँ पे है? डेक्कन पेनिनसुला में. बाकी के सारे रीजन्स को हम लोग ने अलग अलग वे में, आई थिंक ये तुम लोग 10th में टोपो वगैरह में किया करते थे ये सब, मैप लाइनिंग और ज्योग्राफी में. यस, okay, I hope this part is clear to you guys. Let's move to the next part. Next is when we are talking about global diversity. Global diversity में we are going to discuss about globally. देखो इसके पहले जो हम लोग ने numbers लिखे that was just for India. Now we are going to talk globally कि कितना क्या present है. So I होप you guys remember what was IUCN. इंटरनेशनल, कुछ भी मत बोलो, हाँ अच्छे से बोलो. अच्छे से बोलो. इंटरनेशनल हाँ, इंटरनेशनल यूनियन कम्युनिटी काउंसिल, सब बोल दो. उसके आगे क्या? हाँ, फिर इंटरनेशनल यूनियन, IUCN नहीं, कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्स. कैसा क्लोज है, कैसा क्लोज. Now in 2004 they have done a data study and उनका बोलना है कि total animal and plant species described are more than are slightly more than 1.5 million and still there are some species which are yet to be discovered.
ओके अब देर इज अ साइंटिस्ट नेम रॉबर्ट मे. इसने क्या बोला कि हम लोग ने कितनी स्पीशीज को अभी तक प्लेस किया है, 7 मिलियन स्पीशीज को प्लेस किया है, जिसमें से मोर देन 70% स्पीशीज किनकी है, एनिमल्स की, और प्लांट्स की है 22 स्पीशीज. अब एनिमल्स में अगर मैं कंसीडर करूं तो 70% जो है वो है सिर्फ इंसेक्ट्स. ठीक है. एंड अगर मैं फंगाई स्पीशीज मतलब बाकी इन जनरल अगर मैं बात करूं तो पूरा फंगाई स्पीशीज मिलाऊंगी, मतलब सिर्फ फंगाई स्पीशीज अगर मैं देखूंगी तो मुझे मेरे फिशेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स और मैमल्स सबको मिलाना पड़ेगा, तब जाके मुझे मिलेंगे टोटल नंबर ऑफ फंगाई स्पीशीज. दैट मीन्स फंगाइज आर huge in number. Now if you see my this chart that I have attached, yes, can you see this invertebrate वाला data? So can you see कितना ज़्यादा insect का rate है compared to your other animals, crustaceans and molluscs. Next, see in vertebrates we are having 50% fishes, mammals, birds, reptiles and then amphibians. And as I said, last वाली कैटेगरी में फंगाई देखो पूरा ऑलमोस्ट 45% कवर कर रहा है, 30% एंजियोस्पर्म्स, एंड बाकी तुम देखो मोसेस, फर्न्स 5% में है, और बाकी ये 10% में एल्गे, लाइकेंस. So there is a lot of variation and variety in all the species. हमको लगता है हमारे पास ही ज़्यादा variations है, but no, we are having a lot of variation in insects, fishes and majorly in fungi. Now below is some data of number of species that are identified. जैसे कि higher plants कितने अपने पास 2,70,000, algae are 40,000, fungi 72,000, बैक्टीरिया 4,000, वायरस कितने हैं 1,550. ये बस भी अपने लिए बहुत ज्यादा डिस्टर्बिंग है. मैमल्स है 4,650, बर्ड्स आर 9,700, reptiles are 7,150. Then we have fishes, which is 26,959. Amphibians have 4,780. Insects have 10,25,000. Then crustaceans have 43,000. Mollusca 70. Nematodes and worms 25. Protozoan 40. And then last others जिनको हमने अब तक प्रॉपर आइडेंटिफाई नहीं किया या प्लेस नहीं किया, उसमें आते हैं 1,10,000. हाँ अदर्स मतलब जो अनआइडेंटिफाइड है, जिनको हम लोग यहाँ पे प्लेस नहीं कर सकते. हाँ एग्जैक्टली, तो वो सब अपना अदर्स में आ जाता है. फ्री फंड में आ गया ऑफ. I hope this part is clear to you guys and is very simple. मैम ये सबका नंबर रखना पड़ेगा. हाँ मेन है उनका तो डेफिनेटली. Yes, I hope this part is clear to you guys. Sure. Shall we move ahead with our next part, which is patterns of biodiversity. Now जब हम लोग patterns की बात कर रहे हैं तो can you guess what we are going to look for in this part? Something which you have already discussed. Organism and population में भी discuss किया हमने. We discuss about latitude and altitude and all those things, right? तो यहाँ पे भी हम लोग वही सेम चीजें वापस डिस्कस करने वाले, बट इन डिफरेंट वे. वहां पे हम लोग ने विथ रेनफॉल एंड ऑल दोस हम लोग ने डिस्कस किया था, बट यहाँ पे हम लोग सिर्फ रेनफॉल को कंसीडर करके डिस्कशन नहीं करने वाले. यहाँ पे हम लोग उसकी और वैरायटीज को अंडरस्टैंड करने वाले. तो सबसे पहला यहाँ पे हम लोग ग्रेडियंट वर्ड यूज करेंगे. तो सबसे पहला जो हम लोग स्टडी करेंगे वो है लॉन्जिट्यूडनल
Yes. Can you tell me what could be longitudinal gradient? जैसे longitude बढ़ता है So can you tell me what will happen as we move towards which side you will get more variety? तो latitude As we move from pole towards the equator, क्या होगा? As we move from pole towards equator, species diversity increase होगा या decrease होगा? increase पक्का? डिक्रीज तो नहीं होगा ना? इनकेस किसी को लग रहा है कि डिक्रीज होगा, नहीं ना? श्योर हो? और हम लोग यहाँ पे फिर क्या डिस्कस करेंगे? एंड अगर उल्टा किया, वाइस वर्सा किया तो फ्रॉम इक्वेटर टू पोल आए तो decrease होगा good. So increase in the temperature will result in what? more diversity More diversity. तो अगर मैं टेम्परेट एरियाज की बात करूं, टेम्परेट एरियाज, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो डाइवर्सिटी इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है? इंक्रीज होगा. ग्राफ में देखो सॉरी, बैक्टीरिया होंगे बैक्टीरिया स्पीशीज क्या यार टेम्परेचर बढ़ेगा कोई तो मॉइस्चर ही रहेगा अगर बहुत कम टेम्परेचर रहेगा तो कैसे सस्टेन होगा बढ़ेगा इन द सेंस वार्म देखो टेम्परेचर एक हैव वी लर्न समथिंग कॉल्ड एज ऑप्टिमम टेम्परेचर. तो एक ऑप्टिमम टेम्परेचर उस ऑर्गेनिज्म का जब तक आ रहा है तब तक, या उस कंडीशन में, तो इन जनरल भी अगर हम लोग कंसिडर करते हैं एक ऑप्टिमम टेम्परेचर अगर है किसी एरिया में तो वहाँ पे हमको ऑर्गेनिजम्स का स्पीशीज या डाइवर्सिटी ज्यादा मिलेगा. एक्सट्रीम कंडीशन में नहीं मिलेगा. जैसे लेट्स सी एग्जांपल ऑफ डेजर्ट, वहाँ पे तो एक्सट्रीम टेम्परेचर है तो वहाँ पे मिल रहा है कि अपने को स्पीशीज कुछ नहीं मिल रहा है ना. अच्छा, तो टेम्परेट में डाइवर्सिटी ज्यादा होगा, ये अग्री कर रहे हो? बट मैक्सिमम कहाँ पे होगा? But maximum is going to be in the tropical areas. Do you guys agree with it? Yes. Can you give me an example tropical area का कोई एक forest? Yes. Amazon. कहाँ पे है Amazon? Amazon rainforest नाम है ना उसका? Which is in Brazil. ब्राजील का कोई सॉन्ग भी था ना? Any other example? Brazil. Where is Brazil? कौन सा अमेरिका में है? पैराग्वे के ऊपर यस. तो ये एक एग्जाम्पल हो गया ब्राजील का. कैन यू गिव मी एनी अदर एग्जाम्पल? ठीक है, अच्छा ठीक है, चलो हम लोग एक ही एग्जाम्पल को लेते हैं. कैन यू टेल मी व्हाट इज द रीजन दिस एरिया इज हैविंग अ लॉट ऑफ डाइवर्सिटी? टेम्परेचर
रेनफॉल, ये तो बहुत बेसिक चीजें हो गई. कुछ और डिफरेंट रीजन बता सकते हो? बहुत बड़ा है. मेन तो हो गया बहुत डेंस है, उसकी वजह से डेंस है. यहाँ पे वैरायटी ज्यादा इसलिए क्योंकि यहाँ पे हो रहे हैं evolutionary with species. They are having evolutionary changes with the species. इसीलिए species diversified है. कैसी है species? Any other point that we can add? यहाँ पे टेम्परेचर क्यों ज्यादा है? क्योंकि यहाँ पे सोलार एनर्जी ज्यादा है. सोलार एनर्जी ज्यादा होने की वजह से यहाँ पे क्या है? हाई प्रोडक्टिविटी ड्यू टू ठीक है. नेक्स्ट, यस. और कुछ रीजन? दे आर हैविंग बेसिकली ना, वहाँ पे ना अभी ये जो उनका एनवायरनमेंट है वहाँ पर का एक फिक्स्ड एनवायरनमेंट है. जैसे लेट्स टेक एग्जांपल, अगर 3 महीना गर्मी होनी है तो वहाँ पे 3 महीना गर्मी होगी ही. अनलाइक अस जिनका क्लाइमेटिक कंडीशन का वाट लगा हुआ है, राइट? तो यहाँ पे वी हैव कांस्टेंट एनवायरमेंटल कंडीशन. तो जो बोलेगा उसको उल्टा ही लिखेंगे. ऐसा क्यों मतलब? अरे वहाँ पे फिक्स, क्योंकि वहाँ पे पोल्यूशन नहीं हो रहा है. अरे मतलब वो, हाँ, तो वहाँ पे वो पर्टिकुलर जगह पे अफेक्ट करने के लिए क्या है? और अमेज़न ऐसा इतना सा तो है नहीं. इट इज अ वेरी ह्यूज एरिया और उसके आसपास लोग नहीं है. जो फायर वाला इशू हुआ था दैट वाज बिकॉज ऑफ द वो नेचर का था, उसमें हीट बढ़ जाती. या तो कांस्टेंट एनवायरमेंटल कंडीशन की वजह से नीश स्पेसिफिकेशन बढ़ जाता है. लेट मी ऐड स्पेसिफिकेशन, वरना नीश स्पीशीज लिख दोगे. ठीक है. इज दिस रीजन? और ये रीजन क्लियर है? सेकेंड क्या होगा? ग्रेडियंट. अल्टीट्यूड ग्रेडियंट. लॉन्जिट्यूड नहीं होता, और लॉन्जिट्यूड हो गया ना, वो लैटिट्यूड आता है. हाँ, कि लैटिट्यूड लॉन्जिट्यूड लिखा है. नेक्स्ट इज लैटिट्यूड ग्रेडियंट. ऑल्टीट्यूड लिखा है. सॉरी, अल्टीट्यूड ग्रेडियंट. यस. तो सी लेवल के ऊपर जितना जाएंगे, अल्टीट्यूड ग्रेडियंट में क्या होगा? सी लेवल में ज्यादा रहेगा. Yes, as a decrease in the species diversity will be seen from high mountain to drop. उल्टा होगा ना, क्या लो से अरे तो ऊपर से नीचे आई, ऊपर से नीचे ड्रॉप थोड़ी ना आएगा, ऊपर होगा ना, बढ़ेगा ना. ऊपर वापस सोचो क्या पूछा मैंने. अरे वही तो मैं पूछ रहा हूँ. What I am saying, a decrease in the diversity will occur as we ascend a high mountain. ठीक है, as we ascend a high mountain मतलब क्या? हाँ, तो वही बोला, due to the drop in what? टेम्परेचर ड्रॉप होता है बट ऑल्टीट्यूड बढ़ता है. तो जैसे सॉल्टिट्यूड बढ़ेगा हम लोग को इनवर्सली प्रोपोर्शन है टू व्हाट? टेम्परेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ऑल्टीट्यूड.
टेम्परेचर कम होगा Whereas पीछे जब हम लोग ने डिस्कस किया सो टेम्परेचर वाज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. यहाँ पे टेम्परेचर इज inversely proportional. So can we write temperature is inversely proportional to, कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं. 1/, हाँ AI नाम यहाँ भी है आ गया. हर जगह पे AI है. Yes, so what was the statement that I said? Species diversity decreases as we ascend the mountain, right? Why? ऑल्टीट्यूड में वेजिटेशन स्कार्स रहता है. अल्टीट्यूड में क्या होता है, सॉरी? हाई ऑल्टीट्यूड में वेजिटेशन स्कार्स होता है. और जैसे डाइवर्सिटी थ्राइव नहीं सोलर एनर्जी भी कम ज़्यादा. सोलर एनर्जी कम होगी, ज्यादा होगी वहाँ पे. बट टेम्परेचर तो कम है. नीचे रेस पर नीचे ज़्यादा है. ऊपर पर कंपैरेटिवली कम. कंपैरेटिवली कम अगर होगी. ज़्यादा होगा करेक्ट. तो टेम्परेचर एग्जैक्टली. स्मार्ट ही हो गए हो तुम लोग थोड़े से. 1%. ये नहीं बोलना. हाँ. Hence they'll have, so इसी के वजह से यहाँ पे अपने को बहुत ही ज्यादा सीजनल वेराइटीज मिलती है ना. यहाँ पे कोई कांस्टेंट टेम्परेचर नहीं मेंटेन होता ना. कांस्टेंट सीजन मेंटेन होता है क्या? कभी भी कुछ भी हो सकता है. यू नेवर नो. कभी बारिश, कभी स्नोफॉल, कभी कुछ कभी कुछ. ठीक है. एग्जाम्पल दे सकते हो? कैन यू गिव मी एन एग्जाम्पल? प्लेस तुमको मालूम है हिमालय में पूरा ही हिमालय स्नोई नहीं है. हिमालय एंड ले. अब थर्ड क्या है? थर्ड क्या होगा? मैम उधर आपने माउंटेन असेंड आपने लिखा है ड्यू टू इंक्रीज इन टेम्परेचर. डिक्रीज होगा, डिसेंड होगा ना फिर. as we descend the species diversity decreases. नहीं बट मेरा ये कहने का मतलब है कि स्पीशी डाइवर्सिटी डिक्रीज होगा एज वी असेंड द माउंटेन ड्यू टू इंक्रीज इन टेम्परेचर. कैसे होगा? Decrease in temperature. आप वो जनरली कर रहे हैं ना, decrease करने हाँ, इनको ड कर देते. कूल, हैप्पी. चलो थर्ड क्या है? स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप. मतलब क्या? जो स्पीशीज एरिया है हम दोनों का उन दोनों का रिलेशनशिप. एरिया से मतलब गोट को स्पीशीज एंड बेसिकली स्पीशीज और हैबिटेट जहाँ पे वो रह रहे हैं उनका कैसा रिलेशनशिप होता है. सिंपल एग्जांपल जैसे कि आर्टिक के एनिमल्स को या ऑर्गेनिजम्स को हम लोग उनको स्नो चाहिए तो उनको तुम ऐसा धूप में ला के रख दोगे तो वो मर जाएंगे, पिघल नहीं जाएंगे. They won't be able to survive, right? So in this concept we usually look for the points that we have discussed. Do you remember something called as lag, log, exponential death? तो वो जो concept है वो यहाँ पे apply होता है species area relationship में. तो what is lag phase? Can you guys tell me?
इनिशियल जो स्लो होता है इन्वायरमेंटल कंडीशंस पे पहले एडजस्ट करते हैं, फिर एडजस्ट हो जाते हैं तो बहुत ज्यादा इंक्रीज होते हैं, लॉग रहता है वो फिर एक्सपोनेंशियल एक्सपोनेंशियल लैग फेज, लॉग इज एक्सपोनेंशियल फेज, एंड देन यू हैव अ स्टेशनरी फेज जहाँ पे मेटाबॉलिक एक्टिविटी कम हो जाती है बट यू आर स्टिल सर्वाइविंग, एंड देन देयर इज अ ड्रॉप। तो यहाँ पे कैसे अप्लाई हो रहा है, बेसिकली यहाँ पे अलेक्जेंडर नाम के साइंटिस्ट का बोलना ये है कि एज द एरिया इंक्रीजेस द स्पीशीज diversity will also increase, but there is a but, एक सर्टेन लिमिट तक। ऐसा नहीं कि इतना बढ़े तो सब बढ़ता ही जाएगा, एक पर्टिकुलर लिमिट होती है हर चीज की, तो वो लिमिट तक ही होगा, उसके बाद में नहीं होगा। इज इट क्लियर? सो ये जो रिलेशनशिप है, तुमको हाइपरबोला पता है क्या है? व्हाट इज हाइपरबोला? तो स्पीशीज और एरिया का जो इंटर रिलेशनशिप है उसका अगर हम लोग ग्राफ बनाते हैं तो इट कम्स आउट टू बी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। विल ड्रॉ दैट बट आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग यू फॉर नाउ। समझा? श्योर? पक्का? चलो लेट मी जस्ट राइट डाउन। सो क्या बोला मैंने स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप के लिए तुमको? जितना एरिया किसने बोला था पहले ये बताओ? अलेक्जेंडर ने क्या बोला? जितना ज्यादा एरिया होगा उतना ज्यादा स्पीशी का वैरायटी होगा, बट एक सर्टेन लिमिट Alexander von H. What he said? As area increase, species का richness and diversity also increase, but up to certain एक्सटेंट limit. ठीक है? Then when we plot the graph, graphical relationship shows rectangular hyperbola. Easy? Sure? तो यहाँ पे वाइड वैरायटीज ऑफ हर ऑर्गेनिज्म। अच्छा वो जो ये था फॉर्मूला, किसी को याद है? लैग लॉग वाला फॉर्मूला याद है क्या? S is equal to अरे हम लोग ने लैग लॉग और एक्सपोनेंशियल का लॉजिस्टिक कर्व का, अरे लास्ट चैप्टर का नहीं, लैग लॉग जिस चैप्टर में पढ़ा था उसी का बोल रही हूँ मैं। नहीं पढ़ा तो मना कर दो, गलत मत बोलो। तो फॉर्मूला इज log of s is equal to, क्या है फॉर्मूला? log c प्लस है एनसीईआरटी में है। हाँ ओके लेट्स ग्राफ। तो भी यहाँ पे ग्राफ तुम्हारा कैसा बनेगा? एज आई सेड इट इज अ rectangular hyperbola, so we are going to draw it in which way? We are going to have ऐसा
और ज़्यादा लंबा बन रहा है. Okay, so this part is your S is equal to ये जो लाइन बनाई है मैंने, ये लाइन किसको रिप्रेजेंट करती है? लॉग it is going to log, ठीक है लॉग्स के लिए लिख देते हैं सिर्फ. Yes, which is nothing but these give you this formula which is log of S is equal to log of C plus Z log of A. Is it clear? अब इनका मतलब क्या है? S का मतलब क्या है? स्पीशी का रिचनेस. C का मतलब क्या है? क्या? अच्छा मैथ्स आता है. Z का मतलब क्या है? स्लोप. Z is going to be your slope, right? And A क्या है? एरिया. कूल, सिंपल, डिफिकल्ट है कुछ? श्योर? ये जो है इसको हम लोग लॉगरिथमिक स्केल बोलते हैं. क्या बोलते हैं इसको हम लोग? पढ़ा है कभी लॉगरिथमिक स्केल? मैथ्स तो ड्रॉप कर दिया, तो क्या होता है लॉगरिथमिक स्केल? I think पार्शियल मैथ्स. Is it clear? Simple stuff. तो हम लोग ने यहाँ पर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बोला है, तो यहाँ पे हम लोग ने स्ट्रेट लाइन क्यों बनाया? क्योंकि वो एक्सप्रेस वैसे करना है ना हम लोग को. जब हम लोग लॉगरिथमिक स्केल में बना रहे हैं, तो जैसे लेट्स टेक एग्जांपल, अगर यहाँ पे मुझे दिखाना है फ्लावर का या बर्ड्स का या कोई भी स्पीशीज का रिचनेस, जब मैं उनकी इंटर रिलेशनशिप शो कर रही हूँ, तो मुझे वो इन द ग्राफिकल फॉर्म में स्ट्रेट लाइन के हेल्प से बताना पड़ेगा. इसीलिए हम लोग ने यहाँ पे स्ट्रेट लाइन ऐड करके उसको लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट किया. इज इट क्लियर? ये मेरा नॉर्मल हाइपरबोला वाला था, यहाँ पे मैंने इसको स्ट्रेट लाइन बना के तुमको बताया कि कैसे किया हमने. सिंपल. इज इट क्लियर? कुछ समझा तुम लोग को? Now here, since we have come up with this, there will be some range that we have to remember here. तो range कितनी होगी? But still there will be some amount ना. जैसे कि यहाँ पे हम लोग ने z को एज अ स्लोप कंसिडर किया है. इसमें अपने पास अगर स्मॉल z होता है, तो व्हाट इज स्मॉल z? स्मॉल z को हम लोग कोएफिशिएंट. हैव यू एवर हर्ड द वर्ड कोएफिशिएंट? कहाँ पढ़ा? मैथ्स में आता है ना कोएफिशिएंट कि नहीं? नाउ योर दिस z इज रिग्रेशन कोएफिशिएंट. क्यों? सो स्मॉल z ब्रैकेट में इज माय रिग्रेशन कोएफिशिएंट, जो लेटर इकोनॉमिक्स ने फाइंड आउट या डिस्कवर किया है. लेट्स से इकोलॉजिस्ट जो होते हैं उन्होंने डिस्कवर किया है. ठीक है, तो इट इज जनरली 0.1 to 0.5 की रेंज में. कितना होता है? 0.1 जब छोटे एरियाज है, राइट, योर स्मॉल एरियाज के लिए क्या है? 0.1 to 0.5. अब भी बोला ना मैंने. एंड लार्ज एरिया के लिए कितना जाएगा? लार्ज एरिया के लिए गेस करो.
0.1 to 1 to 1. It is going to be 0.6 to 1.2. Simple. और अगर हम लोग को बर्ड्स या मैमल्स का डिस्कशन करना है तो उनके लिए वो 1.6 तक भी जाता है. Is it clear? Sure. हाँ वहां तक जाता है मोस्टली. ये जो है ना वो कौन सी कंडीशन में होगा पता है? ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में होगा. सिंपल. इज इट क्लियर? श्योर. आज हमने कौन सा टॉपिक कवर किया? फर्स्ट वी स्टार्टेड विथ 3 टाइप्स ऑफ डाइवर्सिटी, genetic, species and ecological. Ecological we are having 3 more types: alpha, beta and gamma. Then we discussed about global biodiversity, and then we discussed about geological patterns, जिसमें we discussed about पहले longitudinal gradient है, फिर altitude gradient, फिर species area relationship. Clear? Sure. समझा यहाँ तक? इसके आगे we have to discuss about important species of ecosystem कौन कौन है, which we are going to continue in our next class. Okay? So you guys will finish writing and we'll continue it in the next class. Bye.